Hello, everyone. Welcome to another episode of Outlook Political Pulse. The number of COVID-19 cases have crossed the 3 lakh figure in the country, and as per all reports, we are still not close to the peak. But India has started unlocking gradually, something that is needed to be done to restart the economy. Many of the decisions of the central government in the last few months have come under scrutiny. Its handling of the migrant crisis being the main one, the inconsistent testing protocol, the creaking health infrastructure, which was not updated despite the lockdown. The states are complaining about the center not helping them enough financially. The opposition parties are saying that the consultative process has been given a go by. The Congress even criticized the package, the economic package which the center has given, the one like 70,000 crore economic package. Today, we will discuss the role of opposition during a pandemic. We have with us former Union Minister and National BJP spokesperson Shahnawaz Hussain ji, Congress MP and spokesperson Manish Tewari ji, and respected political commentator Neerja Chowdhury. So my first question is to Manish Tewari. We know that in a democracy, it is the duty of the opposition to critique the government's decisions and policies in interest of the people, to ensure its accountability. But tell me something, in exceptional times like these, with ongoing health emergency and economic crisis, do you think the opposition should still be questioning the government or just simply rally behind it and support all its decisions? Bhavna, thank you very much for hosting this discussion on an extremely germane and an important subject. So therefore, in order to answer your question, let's rewind back to 100 years ago. In the year 1980, as the First World War was coming to a close, the world was hit by a pandemic, which is unfortunately labeled as the Spanish flu. It had nothing to do with Spain, but the fact is, because the Spanish press was the only one which was uncensored at that point in time, so therefore a bulk of the reportage about the flu actually took place or started taking place in Spain. So therefore the flu originated in the trenches of France, where Britain and or the allies and the Central Powers were locked in a face-to-face struggle across the Maginot Line for a long time. And then, with the returning soldiers, it came to Britain and spread to other parts of the world. Now, at that particular point in time, in fact, during the First World War and later during the pandemic of the Spanish flu, the British Parliament functioned throughout that pandemic. In fact, today, the biggest criticism against the Australian government is that the Australian Parliament functioned through the First World War, through the Spanish flu pandemic, and during the Second World War. And why is now the Australian Parliament being called Ep6? So therefore, I think there is absolutely no reason to suspend normal democratic activity. Oversight over government functioning is the responsibility of both Parliament and the judiciary. And so therefore, this is a bit of a myth that the opposition should be rallying behind the government. The opposition has extended constructive support to the government, but many of the decisions of the government have absolutely failed the test of hindsight, including the decision to lock down in such a draconian manner at a 4 hours notice. And I can go on chapter and verse, but I think we'll have more time for it as we go along. So in essence, or in conclusion, to answer your question, if you go by past precedents of equally virulent or even more virulent pandemics around the world, there was never a suspension of democratic activity in countries which were democracies. Okay, let's bring in Shahnawaz ji at this point. शाहनवाज जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो आलोचना है वो जायज है कि वो कह रहे हैं कि आपने पूरी तरह से उन्हें कंसल्ट नहीं किया है, बहुत सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के यूनिलैटरल रहे हैं, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन? देखिए, कांग्रेस की खुशकिस्मती है कि वो अंग्रेज के जाने के बाद 47 के बाद जो कांग्रेस लड़ रही थी
उसमें वो उन्होंने पार्टी बना ली और वो कहने लगे कि वो वही पार्टी है जिसने आज़ादी दिलाई। और ये सही है कि महात्मा गांधी के वो विचार नहीं थे, उनको लगता था कि अलग से कांग्रेस एक पार्टी खड़ी होनी चाहिए और जिस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसको कम से कम राजनीति में इस तरह नहीं आना चाहिए। लेकिन आ गए और ये सीधे हुकूमत में आए, बहुत साल हुकूमत में रहे हैं और ये सही है कि विपक्ष में बहुत कम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एरा था, उस वक्त में वो रहे और 77 में भी कुछ साल के लिए रहे। तो कांग्रेस के साथ दुश्वारी ये हो गई है कि वो सत्ता में तो रही है, इसलिए गवर्नमेंट में रहते हुए उनके बहुत सारे अनुभव होंगे, मैं सबकी आलोचना नहीं करता, लेकिन विपक्ष में जो रोल अदा करना चाहिए था, यानी उनको सत्ता में रहना भी नहीं आता और विपक्ष का रोल तो अभी वो सीख रहे हैं, इसलिए उनकी मैं बहुत गलती भी नहीं मानता हूँ कि मैं मनीष तिवारी जी को जब से जानता हूँ एक रूलिंग पार्टी के नेता के तौर पे जानता हूँ। और बीच में जरूर हम लोग 5-6 साल ऐसा था और बाद में ये 6 साल जब ये लोग विपक्ष में रहे। तो ये सही है कि पेंडेमिक के वक्त में मनीष जी ने स्पेनिश फ्लू की बात की और उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात की, ये सब सही है। लेकिन आज जब कोरोना पेंडेमिक का वक्त है, इस पर कई लोगों की आलोचना है कि वो लॉकडाउन कब होना चाहिए, 4 घंटे का टाइम देना चाहिए था या 1 हफ्ते का देना चाहिए था। इस 1 हफ्ते का भी देते तब भी आलोचना होती। वो उस वक्त एक्सपर्ट की राय थी कि तुरंत लॉकडाउन करना चाहिए। अब जब लॉकडाउन किया है तो कोई भी सरकार होगी वो तो चाहेगी कि कोरोना पेंडेमिक में जो एक्सपर्ट की राय है उसके या उस पर एक फैसला लेगी। तो जब हमने फैसला लिया है तो कांग्रेस ने डेली सिर्फ, मैं सुबह से शाम तक, जैसे आज शाम की डिबेट मेरी होगी तो मुझे मालूम है कांग्रेस कोई ना कोई ऐसा बयान देगी जिस पर डिबेट होगा, तो सिर्फ निंदा करना, आलोचना करना, कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं देना। और जबकि इनके मुख्यमंत्रियों से मुझे कोई शिकायत नहीं। मनीष जी खुद रोपड़ से अभी जुड़े हुए हैं, पंजाब के में कोरोना से लड़ाई में पंजाब ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, राजस्थान ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी और महाराष्ट्र में उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है राहुल जी ने उसको ऑन नहीं किया, वो भी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है उनकी बात कुछ और होती है, कांग्रेस के तर्जुमान की बात कुछ और होती है। मेरा एक लाइन की बात ये कहनी भावना जी कि आप कोरोना पेंडेमिक के वक्त में वॉर टाइम में, पेंडेमिक टाइम में आपको राजनीति से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और सिर्फ आलोचना करना ही आपका विपक्ष का रोल नहीं। चलिए, ये अभी आपने बोला, अभी आप नीरजा जी के पास आते हैं कि अभी तो आपने कहा पैंडेमिक की बात में उनको आलोचना नहीं करनी चाहिए, बट लेट मी कम टू नीरजा. Neerja, okay, let's go beyond coronavirus to other issues like NRC, Citizenship Amendment Act, Article 370. The opposition had raised questions even at that time about the lack of consultative process before taking those decisions. So do you think that this massive government mandate allows it to take unilateral decisions? Because that is what many of these BJP people many of people in the government have been saying, that they don't need to consult because the people have voted them into power and they are simply going by their manifesto. I think, Bhavna, you're right that when there is a brute majority of the kind that the BJP has had in its second term, it makes it even more important for the opposition to speak up more vigorously than would be the case if the majority was not so huge. Because the people of India, n number of people have actually voted the Congress and other regional parties to power, whether it's in the states or in parliament, and they represent them, and it's their duty to raise their concerns and their voice be represented. In a pandemic, you asked this question to Manish Tewari about criticism and rallying behind the government. I think the two are not mutually exclusive. And there is no reason why in a democracy, criticism is equal to negativism. I think it's very much, if the opposition cannot bring to light the hardships being suffered by the migrant labor walking thousands of miles or hundreds of miles back to their villages, they're not worth the salt. They're not worth the people they represent. And I think in a situation of crisis, the opposition that does this and criticizes is actually being a friend of the government. So also is the case with the media.
If we don't do it, if we don't talk about what is happening in the hospitals of Delhi today, people dying without getting adequate attention, and the way bodies are being buried or cremated without the dignity that they deserve, then if the opposition does not raise this vigorously and make sure that the government does what is required and stands by the government, it gives its ideas, then I think it's a very sad day for us, Bhavna. There are two reasons. One is that the opposition is confused. If it criticizes vigorously, it will be seen to be negative and unhelpful. I don't think that is the case. Number two, it has been robbed of the usual, conventional, traditional methods of opposing, which is to mobilize people. You can't do this with social distancing today. You cannot have rallies, dharnas. Even Parliament is not meeting. You're not going in for e-Parliament. You're not having committees meet, which should be. There should be oversight at this moment, at this point of time, about the government's policies. So I think my view is that the opposition needs to criticize even more vigorously, without being destructive or negative, but bring to light for the government what is going on, what is going wrong at the ground level, so the government can put, can rectify those things. Before I bring in Manish again, let me go back to Shahnawaz ji. शाहनवाज जी, गृह मंत्री जी ने भी बोला था कि ठीक है, सरकार जो कर सकती है कर रही है, और हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो. उन्होंने अपनी रैली में बोला, जो उन्होंने वर्चुअल रैली जो उड़ीसा में उन्होंने एड्रेस की थी, कि शायद कुछ गलती भी हो, मगर उन्होंने सवाल उठाया कि ऑपोजिशन ने क्या किया. तो आपको ऑपोजिशन से इस समय पे क्या अपेक्षा है कि उन्हें क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये सही है. जैसे जी, दो विषय है. एक तो आपने कहा कि जब हम हुकूमत में हैं, तो जैसे नीरजा जी ने कहा सीए पे या एनआरसी पे हमने जितनी बातचीत करनी थी बातचीत की है. हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन इसीलिए तो होता है, जब हम कराते हैं तो चर्चा करते हैं. ठीक है, आर्टिकल 370 पर जरूर हमने इनको सरप्राइज किया, और मुझे लगा उस वक्त सरकार का ये सही फैसला था, हमारे मैनिफेस्टो में था, हम उसको कर रहे थे. और मनीष तिवारी खुद ही पार्लियामेंट में इन्होंने कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की थी. और ऐसा नहीं है कि बोलने का मौका नहीं, पार्लियामेंट भी एक चर्चा की ही जगह है. और जहाँ तक इस पेंडेमिक के वक्त में अमित शाह जी ने जो पहली रैली की थी बिहार में की थी, और उसके बाद उड़ीसा और कई जगह वर्चुअल रैली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से, जैसे हम जूम पे आपसे जुड़े हैं, वैसे लोगों से भी जुड़ना है. उनको लोकतंत्र में उनको छोड़कर नहीं चलना और अपनी अपनी बात रखनी है. ये है कि जैसे हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने एक बार मीटिंग की और रोज बैठक की पार्टी के ऑफिस में की, और एमपीज की, एमएलएस की, सबकी की. मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा मीटिंग किसी ने नहीं की होगी वर्चुअल. तब उन्होंने एक बात कही कि सरकार जो करेगी, जो अन्य सरकारें हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब में हमारी सरकार नहीं है या राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, तो केंद्र और राज्य सरकार जो करेगी, पार्टी के नाते हमें क्या करना. तो उन्होंने अपोजिशन पार्टी की तरह काम किया. उन्होंने कहा कि हम ये कोशिश करें कि एक वर्कर है वो 5 लोगों की फिक्र करे, 5 लोगों को खाना न खिलाए तब तक खाना न खाए. हमने 19 करोड़ लोगों तक राशन कैसे पहुंचे, इसके लिए काम किया, और बहुत बड़ी सफलता भी मिली. आपको पता है हमारी पार्टी बड़ी है और उस सिस्टम में हमने काम किया. ये सही है. मजदूरों वाला जो पार्ट है, वो पार्ट ऐसा है जिसकी जब भी चर्चा होगी तो हम लोगों पर ज्यादा इल्जाम तराशी होगी, क्योंकि इरादा ये था उनको रोकने का. लेकिन जब पेंडेमिक का टाइम, जब खासकर लॉकडाउन बहुत बढ़ने लगा, तो मजदूरों का संयम टूटने लगा और मजदूर बड़ी तादाद में चलने लगे. बाद में उनको पहुंचाने का भी काम हुआ. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रेलवे ने पहुंचाने का काम किया. उस वक्त राज्य और केंद्र की राय थी, आपको पता है, ममता जी और कई राज्य तो एकदम लेना ही नहीं चाहते थे. लेकिन बाद में राय बनी कि अगर इनको नहीं लाएंगे तो बहुत दुश्वारी होगी, पैदल भी चलेंगे. और महाराष्ट्र में खासकर ज्यादा दिक्कत हुई, वहां पटरी पर भी लोग चले और कटे भी. तो हमारा सिर्फ ये है कि मनीष जी ये बताएं कि एज ए कांग्रेस वर्कर, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इस पेंडेमिक के टाइम में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लोगों की चिंता में लगे हैं, वहीं रुके हैं.
लेकिन आपने एज ए एमपी, एज ए एमएलए बहुत से लोगों ने काम किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप काम कर, एमपी कैसा भी हो, अगर वो काम करना भी ना चाहे तो जनता उससे काम ले लेती। तो वो कई जगह लोगों ने अच्छा काम किया होगा, लेकिन एज ए पार्टी अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टिव काम में लगते तो उसकी जगह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जितने स्टेटमेंट्स हैं वो इसी तरह के आते हैं। और राहुल गांधी जी खास तौर पे, जैसे कल भी उन्होंने निकोलस बर्न से बात की और भारत में टॉलरेंस नहीं है और जैसा अमेरिका के अंदर हो रहा है वैसा भारत में भी है, क्या अमेरिका जैसा भारत में हो रहा है? और हम लोगों को बहुत एतराज था कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़े नेता हैं और एक बड़ी पार्टी के, उनको कम से कम जब किसी फॉरेन डिप्लोमेट से या किसी से बातचीत करें तो अपने मुल्क के बारे में इस तरह का परसेप्शन बनाएंगे तो मुल्क के नाम के साख पर बट्टा लगता है। इसलिए हम लोगों को इतराज है। हमारा कहना है कि आपको जो भी आलोचना करना है, जिन इशू पे बात करनी है, आप टाइम लीजिए, आप कोई डेलीगेशन लीजिए, प्रधानमंत्री से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, अपनी बात जाकर रखिए। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के टाइम में हम तू मैं करते रहे, आपस में एक दूसरे की आलोचना करते रहे और इसको लेकर मुल्क की इमेज को खराब करें, ये थोड़ा दुख होता है कि अपोजिशन का रोल मतलब नहीं है कि हम दिन कहें तो आप रात कह दें। आपको भी दिन में दिन कहना है। कहीं पर अगर लगता है कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है तो आप बताइए, वहां भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता है ना कि आप सब एकदम ऐसा पिक्चर पेश करें कि इतना बड़ा देश जहां 137 करोड़ का देश है, दुश्वारियां आई हैं, मैं इसको कबूल करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह की पिक्चर पेंट कर रहे हैं वो भी सही नहीं। Manish ji, please respond to what Shahnawaz ji is saying, that he says that the Congress has not been a constructive opposition. देखिए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन और पेट परफॉर्मिंग पूडल में फर्क होता है। जो शाहनवाज जी कह रहे हैं उनको विपक्ष नहीं चाहिए, उन्हें पेट परफॉर्मिंग पूडल चाहिए, और वो पेट परफॉर्मिंग पूडल हम बनने के लिए तैयार नहीं। मैं एक एक करके शाहनवाज जी की सारी बातों का जवाब दे देता हूँ। पहले तो इनको इस बात पे आपत्ति है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी के रूप में क्यों 1947 के बाद इस देश में काम करती गई। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ और 1885 में एक राजनीतिक संगठन के तौर पर उसका निर्माण हुआ था। और 1885 से लेकर 1947 तक जो भारत के आजादी का आंदोलन था, उसमें अगर किसी ने अग्रसर भूमिका निभाई तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निभाई थी। और उसके बाद जब इस देश में चुनाव हुआ और आम चुनाव हुआ, और उस समय पर जब एक बहुत नकारात्मक सुझाव था कि भारत में इतने लोग इलिटरेट हैं, इतने लोग अनपढ़ हैं, उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दी जानी चाहिए, उस समय भारत के लोगों में भरोसा जिताकर भारत को एक आधुनिक संविधान देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और इसीलिए निरंतर और लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की जनता चुनती रही। तो इसलिए अगर आपको इस बात से आपत्ति है कि हम राजनीतिक संगठन क्यों हैं और इस देश का सबसे पुराने राजनीतिक संगठन क्यों है, तो उसका मेरे पास कोई दवाई है नहीं। कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कोविड-19 की कोई दवाई नहीं है, तो आपकी जो ये तकलीफ है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में है ही क्यों, उसकी मेरे पास कोई इलाज नहीं। दूसरा, let's come down to constructive criticism. दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि पिछले 75 दिन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बिल्कुल प्रशासन और शासन चलाना नहीं आता। इन्होंने इस देश का पिछले 75 दिन में भट्टा बिठा के रख दिया। जब इस देश में 381 केस थे और आपके 7 मौतें हुई थी, सिर्फ 123 जिले से केस रिपोर्ट हो रहे थे, उस समय तो आपने लॉकडाउन कर दिया। और जब इस देश में 2 लाख केस हो गए तो आपने उसको अनलॉक कर दिया। या तो वो फैसला ठीक नहीं था या ये फैसला ठीक नहीं है। और इस 75 दिन में
आपने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बैंड बजा दिया। 30,000 करोड़ रुपया नुकसान है हर दिन के लॉकडाउन का। आपने 20 लाख करोड़ का देश का नुकसान कर दिया, और जो बीमारी है वो बीमारी माउंट एवरेस्ट की तरह और ऊंची होती जा रही है। तो इसके ऊपर क्या विपक्ष का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि सवाल पूछे जाए? इस देश में 2011 के सेंसस के हिसाब से 8 करोड़ इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं। 11 करोड़ इंटरस्टेट माइग्रेंट है। 2011 से लेकर 2020 तक वो और 10 करोड़ बढ़ गए होंगे। करोड़ों लोग चल के अपने घर चले गए। 24 मार्च को आपने लॉकडाउन किया, 28 मार्च को आपका लॉकडाउन टूट गया। तो भाई जो काम आपने 1 महीने बाद किया था उनको रेलगाड़ियां देने का, वो काम आपने तब क्यों नहीं कर दिया? कि उनको अपने घर सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचा दिया? 1 महीने बाद भी तो आपको वही करना पड़ा जो आपको 1 महीना पहले करना चाहिए था। और जहां तक रचनात्मक काम की बात है, मैं इनको बताना चाहता हूं जो हमारे अग्रिम संगठन है, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हमारे अग्रिम संगठनों की बात कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, NSU, अपना भारतीय युवक कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस, इस देश में करोड़ों लोगों को अगर किसी ने खाना खिलाया है तो हमारे अग्रिम संगठनों ने खिलाया है। पंजाब में भी मैं आपको बताना चाहता हूं और बहुत ही विनम्रता से शाहनवाज जी ये बात कह रहा हूं कि आप अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करते हैं, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब पंजाब में तकलीफ थी, जब गुरुद्वारे और बाकी धार्मिक संस्थाएं, कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं। मैं आपको एक प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं बाकी प्रदेशों का भी उदाहरण आपको दूंगा। तो कुल मिलाकर चाहे शासन की बात हो, चाहे प्रशासन चलाने की बात हो, चाहे अपनी सूझबूझ से ऐसे फैसले करने की जरूरत हो जिससे कि इस देश के लोग सुरक्षित रह सके, आपकी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जितना आपकी आलोचना होनी चाहिए थी उससे बहुत कम आलोचना हुई। Okay, let's bring in Neerja at this point. Neerja ji, heard both of them. You think there should have been a higher consultative process between the two? Do you think the center should have reached out to the opposition parties before the decision was taken? Okay, they may not have been made public, whatever happened, but should they have consulted like an all-party meeting or something? And also what Manish is saying that they have done enough. Do you think as the opposition party, Congress and other opposition parties have done enough in such a situation, or they could have done more, or they could have come forward and been more constructive in their approach? My simple answer to that, Bhavna, is that neither the government has done enough nor has the opposition played its role as it should have, a blue-blooded opposition. शाहनवाज जी ने कहा ना 370 को लेके हमने आपको सरप्राइज किया। शाहनवाज जी, आज सरप्राइज देने का मौका नहीं है। आज ऑपोजिशन और सरकार को इकट्ठे मिलकर काम करना है। The Prime Minister reached out to the chief ministers, I must say that. And when we went in for a lockdown, look, it was an unprecedented situation. We've never had this kind of a situation. You could have, prepared for it. So I don't judge him harshly for that. But what could have been done is to have called opposition leaders individually together, had a national advisory group, have going for national governance. If you can't have a national government, at least get people on board. Maybe somebody would have had an idea, the migrants may behave this way. But having said that, I say raat gayi, baat gayi. A crisis of the kind we are in is not the time for postmortem. There are two places where I feel the government needs to take the opposition on board. Even Bihar elections kaise hone chahiye, nahi hone chahiye. They need to consult. Now the Prime Minister is going to talk to the CMs again on the 16th and 17th. But a lot of bad blood has been created, whether it's been Mamta, whether it's between Piyush Goyal and Uddhav Thackeray, all this was avoidable. But I would say where the opposition needs to do more and the government needs to do more are two areas. One,
There is a huge amount of grain lying in the godowns of the country. Why is it not being reached to the people who are today facing hunger? Why does not the opposition raise this day after day after day? Point number one. Point number two, the lockdowns were meant to get your act together as far as the medical hospital infrastructure is concerned. We've had to open up, rightly so, because we cannot leave the economy to stagnate further. It's going to lead to hunger and starvation. But you needed to get your act together. You need makeshift hospitals. You need to mobilize people. Get more medical students to come and volunteer. Get other young people to volunteer. After all, to check blood pressure or to give an oxygen mask or even to put somebody on a ventilator, people can be trained even in 10 to 15 days. You need to have an army type of operation today, putting in place makeshift hospitals. This has not been done. हमको लग रहा है हमको जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है. Both the government and the opposition is not raising it the way they are doing it. Fend for yourself. And at the end of it, when you go in for a policy of herd immunity, the bottom line is 80% of you will come through and survive. The rest 20%, the aged and the elderly and the ailing, it's to your luck. You can die because you've not put into place the facilities that any government needed to put into place. And I say this with seriousness, it pains me to say this, Bhavna, that I ask myself this question: why is there a government for me if the government cannot look after me when I'm at my most vulnerable? Why am I paying taxes to this government if it cannot look after me? And I'm not the only one who's asking this question. The bottom line is you've left us to fend for ourselves. And that doesn't speak very highly of the government or the opposition of the country today. Both have been very disappointing. Yeah. Let Shahnawaz ji come in. Shahnawaz ji, जैसे नीरजा जी ने बोला कि अभी डॉक्टर्स की भी कमी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में जितनी दिक्कत है, जैसे इन्होंने इतनी अच्छी सजेशन दी है कि वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जा सकता था या लोगों को आगे इंस्पायर किया जा सकता था कि आप आइए, आके मदद कीजिए. और जैसे कि जनता को छोड़ दिया गया है अपने हाल पे. अब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि सरकार क्या कर रही है? क्योंकि ये आप भी देख रहे हैं, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट्स हो, बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो अब इसमें अभी इसमें सरकार का क्या सोचना है इसके ऊपर? ये देखिए, ये सही है कि अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन सरकार ने जितना अच्छा काम किया ये याद रखा जाएगा, क्योंकि पेंडेमिक के वक्त में प्रधानमंत्री ने पूरा टीम वर्क से काम किया है. अपोजिशन के लोगों को भी यकीन में लिया है, सीएम्स जितने हैं उनको यकीन में लिया है. और जब ये पेंडेमिक आया था तो हम एक पीपी किट या N95 मास्क या वेंटिलेटर बनाते नहीं थे. ये सब कुछ हम अब आत्मनिर्भर उसमें हो रहे हैं. सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है. हमारा सिर्फ ये कहना है कि जितने भी सुझाव होंगे, जैसे आपके इस अभी जो हमारी आपकी मीटिंग के सुझाव हैं, ये भी सरकार तक पहुंचेंगे. आप पॉजिटिव सुझाव दें. आपको लगता है कि जहां जहां जो नीरजा जी ने कहा कि ये कमियां दूर करनी चाहिए, और ये भी कहा कि उनको मौका देना चाहिए स्टूडेंट्स को भी और ट्रेन करना चाहिए, वो सब बहुत अच्छे सुझाव हैं. उन सुझाव को, इस तरह के जितने सुझाव हैं, सरकार उसको एड्रेस कर रही है. मेरी एक गुजारिश है कि अपोजिशन इस वक्त कोरोना के कंधे पर बैठकर अपनी सियासत न करे. कोरोना के काल को बीतने देना. हम सियासत करें ना आप सियासत करें. आप ये मत समझें कि कोरोना का एक दौर आ गया या कुछ कमियां आ गई या कहीं न कहीं कोई कमियां रही होंगी. कोई कमी है तो बताइए, सुधारेंगे. लेकिन उस कमी को आधार बना के उसके ऊपर आप सोचें कि ये आपके लिए राजनीति का एक मौका मिला है, तो देश के लोग इसके लिए आपसे नाराज होंगे. अभी सरकार जो कर सकती है, सीएम की मीटिंग है, आपके भी कई सीएम हैं, उनके जरिए आप सुझाव रखिए. ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, और जहां जहां जो भी अच्छे सुझाव आ रहे हैं उसको हम लोग, कई लोगों की अलग अलग राय होगी. पहले ट्रेन क्यों नहीं चलाया, बाद में क्यों चलाया, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है. लेकिन मेरा आज के इस डिबेट का सिर्फ इतना कहना है कि ये तू मैं वाली जो बहस शाम की टीवी पे होती है वैसी नहीं हुई है, अच्छी हुई. और इसमें जो सुझाव मनीष जी ने दिया या नीरजा जी ने दिया, उसको हम भी पहुंचाएंगे.
और कोशिश कीजिए कि हम भी सियासत न करें, आप भी न करें। ये मौका है, हमें लोगों की बहुत उम्मीद है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से कि वो इस वक्त किस तरह का बिहेव कर रहा है, और हमें उनके उम्मीदों पर खरा उतरना है। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब बिहार में अगले इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में होंगे। दोनों स्टेट्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और माइग्रेंट्स भी सबसे ज्यादा बिहार में से ही आए थे। तो अभी पर ये आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि बीजेपी भी इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेगा, एकदम नहीं। इसको बिहार इलेक्शन को लेके, क्योंकि वही नेक्स्ट इलेक्शन है। और क्योंकि आपकी तो सारी राजनीतिक सारी गतिविधियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, रैली भी शुरू हो गई है, सब कुछ हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं कि हमारी चल रही, हर पार्टी की कुछ ना कुछ चल रही है। अब अगर अमित शाह जी वर्चुअल रैली कर लेते हैं या हम करते हैं, हमने कब कांग्रेस को कहा भाई राहुल गांधी जी मनीष तिवारी जी से बात करें, अपने वर्कर से बात करें, कौन सी दिक्कत है? अब वो कोई ना कोई विदेश का व्यक्ति पकड़ते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, वो खबर बनती है। कुछ नहीं, एक दिन सिर्फ मजदूर के साथ फोटो तो खिंचवा ली, अपने वर्कर से बात करें और रिलीफ में उनको लगाएं, रोज मीटिंग करें। ऐसी तो कोई खबर हमने देखी नहीं। मनीष जी ने कह दिया, युवा कांग्रेस ने किया और लोगों ने किया। तो भाई आजकल तो ट्विटर पे हैं आप, फेसबुक पे हैं, ऐसी कोई खबर कांग्रेस पार्टी ने कभी इसके लिए कौन सा अभियान चलाया है? हमने तो आपको मनीष जी को पूछते, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, मनीष जी से पूछते हैं कि व्हाट डज ही हैव टू से। देखिए भावना जी, बुनियादी बात ये है कि क्या ये समय है सियासत करने का? भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि विपक्ष को हमारी आलोचना नहीं करनी चाहिए, विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जब चीन आपकी सरहद पे खड़ा है, 40 से लेके 60 किलोमीटर आपकी सरहद के अंदर चीन घुस आया है, पाकिस्तान और चीन के बीच बहुत एक्टिव कोऑपरेशन चल रहा है, और ये बात बहुत ही जिम्मेदार जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं। भारत में के जो शहर हैं, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, इन सारे शहरों में जो कोविड की सिचुएशन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्लेंस में कहते हैं 3 फ्रंट सिचुएशन। दिस इज इंडियाज क्लासिकल स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर। और ये समय है वर्चुअल रैली करने का, ये समय है विपक्ष की सरकारें तोड़ने का, ये समय है एमएलए खरीदने का, कि ये समय है मुल्क को बचाने का? मैं ये बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जब आपको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप इस देश का प्रशासन चलाएं, तो जब देश के सामने इतना बड़ा संकट है, as I said earlier, you are facing a classical 3-front situation, which is a strategic nightmare. Should anybody in government be even thinking of politics? Okay, sorry Manish, we have run out of time, and thank you so much. I know you've had a personal thing. से बात करें और अमित शाह जी वर्कर से बात भी न करें, ये समय है निकोलस बर्न से बात करने का। चलिए शाहनवाज जी, थैंक यू सो मच। अभी हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। Thank you all of you for joining us. Thank you so much. Thank you Neerja, thank you Shahnawaz ji, thank you Manish.